السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو مارکیٹنگ 4.0 کے بارے میں ہے۔ روایتی سے ڈیجیٹل کی طرف بڑھنا۔ فلپ کوٹلر، جو دنیا کے اعلیٰ مارکیٹنگ ماہرین میں سے ایک ہیں، نے تبدیلی کے راستے پر پیشہ ور افراد کی اگلی نسل کی رہنمائی کے لیے مارکیٹنگ 4.0 لکھا۔ مارکیٹنگ اب ایک جیسی نہیں رہی۔ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل دنیا کے عروج نے کمپنیوں کے اپنے صارفین کے ساتھ تعلقات کو بدل دیا ہے۔ بل بورڈز اور ٹیلی ویژن پر اشتہارات اب پہلے کی طرح بااثر نہیں رہے۔ تو آپ اپنے گاہکوں تک مؤثر طریقے سے کیسے پہنچیں گے؟ ڈیجیٹل دنیا کے اس نئے دور میں کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں؟ یہ کتاب مارکیٹ کی نئی حرکیات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گی اور آج آپ اپنی پیداواری صلاحیت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ 4.0 کیا ہے؟ ہم مارکیٹنگ میں تبدیلی اور موافقت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل اکانومی کے اس دور میں مارکیٹرز کی رہنمائی اور خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجیز کا اندازہ لگانے میں ان کی مدد کرنے کے لیے ایک نئے انداز کی ضرورت ہے۔ مارکیٹنگ 4.0 ایک ایسا طریقہ ہے جو کاروبار اور صارفین کے درمیان آن لائن اور آف لائن تعاملات کو یکجا کرتا ہے۔ اس نئی ڈیجیٹل اکانومی میں اب صرف ڈیجیٹل تعامل ہی کافی نہیں ہے۔ درحقیقت، بڑھتی ہوئی آن لائن دنیا میں آف لائن تعاملات ایک زبردست مسابقتی فائدہ کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ 4.0 بھی انداز اور مواد کا مرکب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تیز رفتار تکنیکی رجحانات کی بدولت برانڈز کو تیزی سے لچکدار اور موافقت پذیر ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ تیزی سے شفاف دنیا میں صداقت ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ آخر میں مارکیٹنگ 4.0 مشین ٹو مشین کنیکٹیویٹی اور مصنوعی ذہانت کا فائدہ اٹھاتی ہے تاکہ مارکیٹنگ کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے، جبکہ صارفین کی مصروفیت کو مضبوط کرنے کے لیے فرد سے فرد کے رابطے کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور اس نئے منظر نامے میں کمپنیوں کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر روایتی میڈیا اب کافی نہیں ہے تو ہم گاہکوں کی توجہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی مصنوعات اور برانڈز کے حامیوں کی حوصلہ افزائی کر کے صارفین کو کس طرح مشغول کر سکتے ہیں؟ اپنی پروڈکٹ کو فروغ دینے کے لیے متاثر کن افراد کو کیسے تلاش کریں؟ کنزیومر ڈائنامکس میں تبدیلیاں۔ انٹرنیٹ کی بدولت صارفین کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے سامان اور کمپنیوں کے معیار کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ اب گوگل کا استعمال کرتے ہوئے کسی کمپنی کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا اس کمپنی کو شکایت ہے؟ وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اس کے صارفین کو درپیش اہم مسائل اور مشکلات کیا ہیں؟ لہذا تنظیموں کے لیے گاہکوں کی توجہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر آپ کامیاب مارکیٹنگ تیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو پرانے بل بورڈز اور ٹیلی ویژن چینلز پر اشتہارات سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جامع دنیا میں طاقت کے ڈھانچے میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ ماضی میں یہ ڈھانچے عمودی اور انفرادی تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ سال پہلے جب آپ نے ایک معیاری پروڈکٹ خریدی تھی تو آپ کا دعویٰ زیادہ سے زیادہ خاندان، دوستوں اور جاننے والوں تک پہنچا تھا۔ معلومات تک نہیں پہنچی کیونکہ چینلز محدود اور خصوصی تھے۔ ان دنوں اگر آپ کوئی خراب پروڈکٹ خریدتے ہیں تو آپ اپنے سوشل نیٹ ورک کے بارے میں شکایت کر سکتے ہیں اور کمپنی کے نام پر نشان لگا کر ان لوگوں کے ساتھ اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ لہٰذا اگر کوئی اور پروڈکٹ پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو انہیں آپ کی شکایت تک رسائی حاصل ہوگی اور وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آج کی دنیا جامع، سماجی اور افقی ہے۔ صارفین تجربات کا اشتراک کرنے اور غیر معیاری مصنوعات خرید کر انہیں دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی دستیاب معلومات تک رسائی حاصل ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے تجربے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس نے ڈزنی میں گلاس خریدا تھا، ڈیجیٹل متاثر کن ٹی وی اشتہارات، ماس میلنگ کے بارے میں بھول جائیں۔ وہ لوگ اب ان میڈیا پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس کے بجائے، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، وہ دوستوں، ساتھیوں اور سوشل نیٹ ورکس سے پہلے انحصار کرتے ہیں۔ مشہور شخصیات اور اشتہارات کی جگہ ڈیجیٹل متاثر کن افراد نے لے لی ہے۔ انٹرنیٹ کی مشہور شخصیات، یوٹیوبرز اور انسٹاگرامرز جن پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں متاثر کن افراد کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان لوگ، مائنڈ شیئر، خواتین، مارکیٹ شیئر، انٹرنیٹ کے باشندے، ہارٹ شیئر۔ نوجوان نئی ٹیکنالوجیز کے لیے زیادہ کھلے ہیں
और आपके प्रोडक्ट की जांच के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर आप उन्हें कायल कर सकते हैं तो आप नाम नेहाद माइंड शेयर जीत सकते हैं। नौजवान आपके हल से बहुत पुरजोश होंगे और दोस्तों, साथियों और बूढ़े लोगों को बताने में दिलचस्पी रखते हैं। कई किस्म की तहकीक से साबित हुआ है कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले बेहतर फैसला साज होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग ने तब्दीलियां लाई हैं। पुराने बाजार की तकसीम को नज़रअंदाज करें। मार्केटिंग 4.0 में उसकी जगह कम्युनिटी सेगमेंटेशन ले ली गई है। इसका मतलब है कि कम्युनिटीज़ के साथ मुकालमे आपकी मसनूआत को हदफ बनाने में मदद करेंगे, लेकिन इस बात पर तवज्जो देना ज़रूरी है कि ये कम्युनिटीज़ स्पैम और इश्तिहारात को अहमियत नहीं देती। इस किस्म के मवासलाती चैनल पर इसरार करना मार्केट में आपके ब्रांड को दागदार कर सकता है। लोग इनफरादी और मुनफरिद होते हैं, इसलिए वो मियारी हल नहीं चाहते। आपको इस कम्युनिटी के साथ बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट को महज पेश करने के बजाय आप सीधे सादे सवालात पूछ सकते हैं, जैसे कि आप इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आप अपने ग्राहकों के साथ मुकालमे और ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। नीज़ करैक्टर कोड की कदर को समझना भी ज़रूरी है, जो अब मशहूर ब्रांड पोजीशन की जगह ले लेता है। मार्केटिंग 4.0 इंटरनेट के साथ ब्रांड्स को ज़्यादा शफाफ होना चाहिए, क्योंकि सारिफीन की तरफ से उन पर गहरी नज़र रखी जाती है। आपने शायद मशहूर 4P के मार्केटिंग फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा। अब उनकी जगह 4C ने ले ली है। ये डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से फ़रोग़ देने वाली सबसे ड्रामाई तब्दीली है। प्रोडक्ट की जगह को दखल ने ले ली है। महज एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय कंपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करती है, इसके मुतालिबात को हासिल करती है। कीमत को करेंसी के ज़रिए छोड़ दिया गया है। बार बार आमदन पैदा करने वाले प्रोडक्ट/सर्विसेज सिस्टम्स जैसे सब्सक्रिप्शन चैनल्स, स्पॉटिफाई, बारामिन, डीजे वगैरह डिजिटल दौर में बढ़ रहे हैं, एक कीमत की जगह ले रहे हैं। जगह को फ़िरका वाराना एक्टिवेशन से बदल दिया गया है। कोई भी शख्स कहीं से भी प्रोडक्ट बेच सकता है। अब हम खुद को बेचने के लिए जिस्मानी खाली जगहों पर इन्हिसार नहीं करते। प्रमोशन को बातचीत से बदल दिया गया है। प्रोडक्ट की तरवीज को कम्युनिटी मेंबरान और सोशल नेटवर्क्स के दरमियान होने वाली बातचीत के ज़रिए तब्दील किया जाता है। मुअस्सर मवाद की मार्केटिंग बनाने के लिए एक अपना मकसद तय करें। आप इस मुहिम से क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने ब्रांड की आगाही में इजाफा करें, अपनी फ़रोख्त में इजाफा करें। 2 अपने सामीन का नक्शा बनाएं। सार्फिन का प्रोफाइल क्या है, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं। 3 मवाद की मंसूबाबंदी और आइडियलाइजेशन। मवाद का मरकज़ी मौजू क्या है और उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। 4 मवाद की तख्लीक। ये मवाद कौन तख्लीक करेगा, कब बनाएगा। 5 मवाद की तकसीम। अब कहाँ तकसीम करना चाहते हैं। 6 मवाद को बढ़ाना। मवाद से फ़ायदा उठाने और गाहक के साथ बातचीत करने का आपका क्या मंसूबा है। 7 मवाद की मार्केटिंग की तशख़ीस। क्या आपकी मुहिम कामयाब रही है। पैमाइश के लिए कौन से मैट्रिक्स इस्तेमाल किए गए। 8 बेहतर मवाद की मार्केटिंग। आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं। मल्टी चैनल मार्केटिंग कैसे काम करती है। मौजूदा रुझान गाहक के लिए एक से ज़्यादा चैनल्स को खरीदने और कंपनी से ताल्लुक़ रखने का है। आपने कितनी बार किसी स्टोर में दाखिल किया है, किसी प्रोडक्ट को तलाश किया है और गूगल के मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन स्टोर की कीमत चेक की है। माजी का ख्याल कि एक अच्छी ऑनलाइन मौजूदगी काफ़ी है, वो टूट गया। आजकल ये ज़रूरी है कि कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कायम करने की कोशिश करे। यहाँ चैलेंज दोनों जहानों की टेक्नोलॉजियों का इंज़माम है। फिज़िकल स्टोर को वर्चुअल दुनिया का तकमीली होना चाहिए, दोनों को साथ साथ काम करना चाहिए। मशहूर स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप नेटवर्क मिसाल के तौर पर इस मल्टी चैनल तसव्वुर के साथ अच्छी तरह काम करता है। कंपनी ने गाहक के लिए अपना कार्ड साइन अप करने और सेलफोन से अपनी कॉफ़ी का इंतखाब करने के लिए एक दरख्वास्त तैयार की। जब क्लाइंट स्टारबक्स से 1 किलोमीटर के फासले पर होता है तो दरख्वास्त अटेंडेंट को कतारों का सामना किए बगैर ऑर्डर तैयार करने का मशवरा देती है। नए खरीदार का सफ़र। सारिफ के नए सफ़र का मकसद क्लाइंट की रहनुमाई करना है, जब से वो अपने ब्रांड से वाकिफ़ हो जाता है इस लम्हे तक जब तक वो इसका दिफा और नुमाइंदगी करना शुरू ना करे। इस सफ़र के मराहिल को मुंदरजा ज़ैल 5A से ज़ाहिर किया जाता है। आगाह। उस वक्त आपको गाहक को ये बताने की ज़रूरत है कि आपका ब्रांड दुनिया में मौजूद है। आप इसे कुछ तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं, जैसे इश्तिहारात,
सोशल नेटवर्क्स, एडवर्ड्स, ब्लॉग्स वगैरह। अपील कि यहाँ आपको इम्कान के लिए अपने फ़र्क को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको अपने हरीफों से अलग होने की ज़रूरत है, चाहे वो डिज़ाइन, कंपनी की कदरों और विजन के लिहाज से हो या मुमकिन सारिफ की तवज्जो हासिल करने वाली कोई और खसूसियत। पूछें, इस मरहले पर आपका मुमकिन गाहक आपकी कंपनी पर तहकीक करेगा। वो गूगल सर्च कर सकता है, किसी जानने वाले दोस्त से पूछ सकता है और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में मालूमात तलाश कर सकता है। ये नुक्ता अहम है और ब्रांड्स के लिए ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की बुनियादी वजह मुस्बत समंदर। अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना। इन इक़दामात पर अमल करके अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ निकात। अपने ट्रिकेशन फ़ीसद में इजाफ़ा करें, हमेशा अपने सामीन की नज़र में रहें और सोशल नेटवर्क्स पर अपनी मौजूदगी बढ़ाएं। सार्फिन और वो जहाँ भी हों उनसे ताल्लुक़ के नए तरीक़े तलाश करें। तजस्सुस को बेहतर बनाएं, तख्लीकी मवाद इस्तेमाल करें और अपने गाहक को मुअस्सिर तरीक़े से राग़िब करें। आपको मुमकिना सारिफीन के लिए मुफीद और मुतल्लिका मवाद तैयार करने की ज़रूरत है। अपने अज़्म में इजाफ़ा करें, ये एक मकसद रखें और उससे अहद करें। इस मकसद के ज़रिए अपने सारिफीन के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करें। गाहक के साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाएं। गाहक कंपनियों से राब्ता रखना चाहते हैं, अफराद और इनफरादियत के साथ बर्ताव करना चाहते हैं, खुदकार और रोबोटिक पैगामात ना भेजें। अपने गाहक से बात करें, दिखाएं कि ब्रांड के पीछे कोई है। ये इसके साथ बॉन्ड बनाने का एक तरीका है और उससे आपको अपने वकालत की तादाद बढ़ाने में मदद मिलेगी। हतमी नोटिस। इंटरनेट के ज़हूर के साथ कंपनियों और ब्रांड्स के लिए जिस्मानी पाबंदियां अब मौजूद नहीं हैं। आपके कारोबार का हजम और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी अब किसी ब्रांड के डिजिटल दुनिया में मशहूर होने के लिए फैसलाकुन नहीं है। ये मंजरनामा कंपनियों को तरक्की करने का मौका फराहम करता है, बल्कि मार्केट की मुसाबकत की सतह को भी बढ़ाता है। लिहाजा अगर आप नुमायां होना चाहते हैं तो आपको इस नए दौर के मुताबिक ढालने और डिजिटल दुनिया में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब